हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल के अंदर आज हम बनाने वाले हैं कैटिया में ये एक एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है 2 सिलेंडर का। ये एक ट्यूटोरियल है जो कि मैं बना रहा हूँ बिगनर्स के लिए, जो भी बिगनर्स हैं, जो भी अभी सीख रहे हैं कैटिया या फिर कोई भी कैट सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं। प्रोसीजर लगभग सेम ही होगा। तो इसे हम बनाते हैं और सेम ट्यूटोरियल आपको ये वाला हमारे कैट गेम सोल्यूशन पे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा ऑन यूनिग्राफिक्स ट्यूटोरियल। ठीक है, तो ये यूनिग्राफिक्स में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये वाला एक पोर्शन इसके अंदर क्रिएट करूँगा। ठीक है, और उसके बाद इसको कंबाइन कर्व के थ्रू इस वाली कर्व से मैं इसको कंबाइन करूँगा ताकि ये कुछ ऐसा 3D कर्व आ जाए यहाँ पर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस व्यू एंड फर्स्ट आई विल ड्रॉ अ 34 mm line and then I will draw a line which is 62.56 mm high from this base point, and it should be 35 degree from the center, and also apart from that it also has a 20 radius fillet from this point. So let's start it. I am taking YZ plane and then choose sketch. After choosing sketch, now you are in the sketcher workbench. Okay, so I am taking this point and then take this draw this line at an angle, and then assign dimension. This is 34 mm in length from the bottom. I am drawing it from the bottom, I am not drawing it from this point. And after that I will create these rounds. Okay, this is 34 mm in length, so assign 34 mm, and apart from then that it is also 62.56 mm height from this point. Okay, so go to constraint, select this point, only this point, not a line. Okay, select carefully and select the horizontal and assign 62.56. Okay, and let's assign some dimension, angular dimension, which is 35 mm. So go to constraint again, select this vertical line and this angular line, and now assign dimension 35 degrees. Okay, after assigning this 35-degree line, the last thing I need to do is this 20 radius fillet. So for this, go to corner and select these two lines to assign fillet, and it will show you an message. So press yes, then edit this dimension, and you know what dimension you need to do, what dimension you need to give. It is 20 mm in dimension. Okay, आई हैव डन ऑल द थिंग्स। सो मैंने यहाँ पे सब कुछ दे दिया है। यहाँ पर मेरे पास 34 mm की लाइन भी आ गई है, 35 mm का भी मैंने ड्रॉ कर दिया है, और यहाँ से 20 का फिलेट भी आ गया है। और तो अब चलिए यहाँ से एग्ज़िट कर जाते हैं। एग्ज़िट करने के बाद इसकी एक और लाइन हमें बनानी होगी। तो इस बार मैं ये वाला प्लेन ले लेता हूँ जो कि ZX प्लेन है। ओके, ZX प्लेन में जाने के बाद मैं अब ऐसा वाला प्रोफाइल बनाऊंगा। इन दो प्रोफाइल को, शेप को मैं कंबाइन कर दूंगा। ओके, सो यहाँ से मैंने इसको बनाया। इसको बनाने के बाद यहाँ से मैं गया फिलेट कॉर्नर के अंदर, और इन दो लाइनों को मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पर भी मेरे पास देखिए 20 mm का रेडियस है। आई हैव 20 mm रेडियस। नाउ it's time to assign some dimension it. So the total length of this curve is 62.56 mm. So select constraint, select this point and select this point. Now assign dimension 62.56, sorry, 62.56, and then press OK. After pressing OK, now I need to assign this horizontal length, and to assign the horizontal length, select this very first point of this line, and this line, it is 36 mm in length. Okay, and now okay, the distance we need to specify. Okay, so I am specifying 0 from this point to this point, or you can coincide these two points. Press Ctrl and then select these two extreme points.
select coincide. Okay, it is getting over constraint, so undo the process, select the constraint, assign 0 mm. Okay, why am I assigning 0 mm? Because it should match this line, so that we can get a desired combine curve. So अब इसके लिए है ना हमें combine curve यूज़ करना पड़ेगा, तो इन दोनों को combine करने के बाद कुछ ऐसा कर्व आएगा. इस पूरे ट्यूटोरियल के अंदर एक यही पार्ट थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बाकी इसके अंदर सब कुछ ईजी है. जो भी बच्चे एक्सपर्ट हैं उनको पता ही होगा. सो यहाँ से एग्ज़िट होते हैं. एग्ज़िट होने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास ये दो कर्व हैं. ओके, सो अब हमें क्या करना होगा, वी नीड टू गो टू जनरेटिव शेप डिज़ाइन, बिकॉज only in this part we can get a combined curve, and as you can see there we have a combined curve. Or go to insert and go to, or you can find here these commands. We have lots of command there. You can select whatever you want. You have a surface command, okay, you have a law, you have a wireframe, and on the wireframe you will find a combine curve. Okay, I'm just showing you, or you can find outside on your geometrical area. Select combine, and now we need to combine both these curves. So select first curve and then second curve, and click on preview, and you will get a curve which is a combination of these two curves. So what I'm going to do is I'm going to hide all these curves so that I can use this for the sweep command. Now you know what I'm going to do is I'm going to make a sweep फीचर. सो यहाँ पे एक स्वीप फीचर हम लोग लेने वाले हैं. अंदर तो 11 डायमीटर है और बाहर है ये 15 डायमीटर. ठीक है, इसके लिए हमें एक प्लेन जनरेट करना पड़ेगा. प्लेन जनरेट करना पड़ेगा नॉर्मल टू कर्व. सो नॉर्मल टू कर्व पे क्लिक करेंगे. नहीं हुआ कोई बात नहीं, कैंसिल करेंगे. प्लेन लेते हैं और उसके बाद आएगा नॉर्मल टू कर्व. तो सबसे पहले तो हमें कर्व पे क्लिक करना होगा, एंड देन वी नीड टू क्लिक ऑन द पॉइंट सो दैट वी कैन गेट द plane on desired place. Again select this plane for the sweep feature, and now for the sweep feature I'm going to sketch two circle. One is 11 diameter and another one is 15 mm diameter. So draw circle here and then assign dimension, and after that I will apply constraint to it. So it is 15 mm in diameter. Okay, so make it constraint. So select press control key on your system and select these 2 points. Go to constraint conversion, constraint defined in dialog box, and then select coincide. Okay, it will get fully constrained, it will get green. Okay, select this point again, and now I'm assigning dimension 11 diameter. Okay, so double click to change the dimension and assign 11. Now we have two circle too, so that we can sweep. Okay, now exit the workbench, and we need to again go to part design because I want a solid sweep, and there we have a rip command. As you can see, these two sketches are already selected because they are highlighted or in orange color, so we don't need to select them again. So I'm just clicking on the rip command because these two circle are already selected, and then the only thing I need to do is to select the center curve on which you want to get your sweep. Then press preview, and then okay, now you have a sweep command. As you can see, it is exactly matching this part of the exhaust manifold. Okay, now I'm hiding. Okay, I will not hide it. So the next thing is the same pipe I want on the other side. So what I'm going to do is I'm going to keep a mirror. I'm going to take a mirror of this. So for mirror I have this center plane. Go to mirror. Okay, select your center plane and then press OK. You will get your mirror on the other side. Okay, and one more thing is there is a fillet on between these two pipes, so it is 7 mm. You need to create a fillet. Assign 7 mm here, and then select the curve carefully. Okay, or it will fillet all the curves. Okay, I want fillet on over this curve only. Get your preview.
and then you will get a desired shape you want. ओके, यहाँ से अब हमें नेक्स्ट बनाना होगा ये जो नीचे वाला पॉइंट है ना, ये वाला अब आपको बनाना है। इसके अंदर अभी हमारे पास ये दो चीज़ें हैं। सो मैं कोशिश करता हूँ इसको बनाने की, बट मेरा प्लेन थोड़ा सा दूर है तो ये कुछ डिफ़िकल्ट हो सकता है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। सो अभी ये कितना दूर है, कुछ कहाँ नहीं जा सकता। मैं जनरेट करके देखता हूँ, अगर कोई प्लेन जनरेट हो जाएगा तो यहाँ से आएगा टेंजेंट टू कर्व लेते हैं और देखते हैं, यहाँ से प्लेन जनरेट करके देखते हैं अगर हो जाता है तो। टेंजेंट टू कर्व, यहाँ पे एक पॉइंट भी सिलेक्ट करना होगा पर ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो मैं काम करता हूँ, मैं इसी के ऊपर यहीं पे बना देता हूँ। पहला जो सर्कल होगा वो होगा मेरा 20 डायमीटर का, देन उसके अंदर वाला होगा मेरे पास 11 डायमीटर का, ठीक है। तो इसको मैं ऊपर के साइड में एक्सट्रूड कर दूँगा। तो यहाँ से मैंने लिया है स्केच, ठीक है। और सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे किया मैंने कन्वर्ट एंटिटी। सो कन्वर्ट एंटिटी आपको कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पे कन्वर्ट एंटिटी, सॉरी प्रोजेक्ट 3D सिलुएट। तो कन्वर्ट एंटिटीज़ होगा आपका सॉलिडवर्क्स में, इसमें प्रोजेक्ट 3D होगा कैटिया में। सो वही याद रहता है। तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ, पहले कन्वर्ट एंटिटी तो नहीं हो रहा है, यहाँ पर मैं बना देता हूँ। और ये है मेरे पास में 20 डायमीटर का, ठीक है। तो यहाँ से मैं 20 डायमीटर इसको रख लेता हूँ। अब इसको सेंटर में लेकर आना है, तो कंट्रोल दबाकर ही इसको सेंटर में ला पाएंगे। को सेंट्रिसिटी लेना होगा और ये आपका आ जाएगा। उसके बाद आपको एक और सर्कल लेना है, क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट तो काम नहीं कर रहा है। ये वाला लेते हैं, इसके अंदर हो गया, ठीक है। सो ये तो मैंने यहाँ पर बना दिया है। और उसके बाद ये हमारे पास 20 का है और ये 15 का है, इसको एग्ज़िट करेंगे। और ये लगभग 4 mm का है, तो इसको मैं एक्सट्रूड करूँगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। सो यहाँ पे 4 डालेंगे और इसको रिवर्स डायरेक्शन कर देंगे और प्रीव्यू। ओके, एक तो मेरे पास में ये हो गया है। एंड नेक्स्ट वन इज़, अब मेरे को यहाँ पे एक और स्केच करना है। इस फेस के ऊपर मुझे स्केच में चाहिए, इसके ऊपर मेरे को एक स्केच चाहिए लगभग 25 डायमीटर का मुझे चाहिए होगा। तो यहाँ पर मैं एक सर्कल ले लेता हूँ और इसको मैं 25 डायमीटर इसको असाइन कर देता हूँ। अब इसको सेंटर में लेकर आना है। सेंटर में दोनों को सेलेक्ट किया मैंने और कोसेंट्रिसिटी मैंने कर दिया। अब इसके सेंटर में ये होल भी आना चाहिए, तो इसके लिए मेरे को एक और होल भी यहाँ बनाना पड़ेगा और ये होल मैं बना देता हूँ। और इसको चाहे तो आप प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, आपके पास दोनों ही ऑप्शन है, ठीक है। मैं थोड़ा प्रोसेस लंबा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। और इसको भी हम लोग ऊपर करेंगे एक्सट्रूड। और ये टोटल 9 है तो 4 ये है, तो मीन्स दिस रेस्ट पार्ट इज़ अबाउट 5 mm एक्सट्रूड। सो यहाँ से 5 mm एक्सट्रूड कर दीजिएगा और ओके। सो आपके पास ये भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अभी आपने ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। अब आपको यहाँ पर चैम्फर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि है 2 चैम्फर। हम लोग चाहे तो लास्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको लास्ट में ही कर देंगे। अब ये जो मैंने प्लेन जनरेट किया था, इसी के ऊपर स्केच करने की बारी आ गई है। और यहाँ पर अब हमें बनाना है, देखिए ये वाला पोर्शन जो कि इंजन मैनिफोल्ड से जो कनेक्ट होता है ना, सॉरी आपका सिलेंडर हेड में जो कनेक्ट होता है, जो एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर ले जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में इस वाले पार्ट का कुछ डायमेंशन नहीं है, तो इसको मैं अपने हिसाब से लूँगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ही 66 है। यहाँ पर सबकी डायमेंशन है, बट मुझे यहाँ पर इसकी डायमेंशन नहीं दिखाई दे रही है। अगर आपको दिखाई दे रही है तो आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है ना।
मुझे तो ये नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे कोई डायमेंशन है या नहीं है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको अपने हिसाब से ज़ूम करने वाला हूँ। ठीक है, मुझे जस्ट आपको टेक्निक बतानी है कैसे बनाना है, बाकी सब आप खुद ही कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं डायमेंशन कर देता हूँ। फर्स्ट ही इसका सेंटर आएगा 20 mm यहाँ पर। ये जो पॉइंट है यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है ये वाला पॉइंट, और यहाँ से आपको जाना है 20 mm। ठीक है, 20 mm जाने के बाद आपको नीचे से 62.5.6 लेना है यहाँ से डायमेंशन। ओके, सो ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, सॉरी इसको डिलीट करते हैं। इसको लेते हैं ये पॉइंट, और ये पॉइंट आपका डायमेंशन आ जाएगा। ठीक है, इसको डालेंगे 62.56, 62.56, और ये आपका आ गया सेंटर में। इसके बाद आपको क्या करना है, हाँ तो अब इसको डायमेंशन कुछ स्पेसिफाई कर देते हैं ताकि ये पूरा फुल्ली कंस्टेंट हो जाए। 30 है तो 23 है तो इसको 25 कर देते हैं, थोड़ा सा लार्ज हो जाएगा। चलिए यहाँ पर तो ये बन गया है। इसके बाद ये दोनों भी बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब हमें लेना है सर्कल, और इसको यहाँ कहीं बना देते हैं। ये एग्जैक्ट इसका सेंटर ही है। तो इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। यहाँ पर इसका जो डायमेंशन है ये है लगभग 5 रेडियस, तो यानी कि 10 डायमीटर का हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग डालेंगे 10 और यहाँ से ओके करेंगे। अब ये है 66, यहाँ से 66 का आधा 33 हो जाएगा। इसको भी एक डायमेंशन दे देते हैं, या इसको बिल्कुल इसके साथ हॉरिजॉन्टल ही कर देते हैं। कंट्रोल प्रेस करके हमें सेलेक्ट करना होगा। ये 66 है ना, तो इसको है ना हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आई थिंक मैंने 33 कर दिया है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिलीट। इसको हम लोग वर्टिकली डायमेंशन स्पेसिफाई करते हैं। इस पॉइंट से हम लोग लेते हैं इस पॉइंट से। ओके, तो इसको सेम ही रहने देते हैं। ठीक है, बस ये ग्रीन हो जाए। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, एक और इसके बीच में सर्कल है, इसको हमें बनाना है जो कि 4.5 डायमीटर का है। तो यहाँ से हम लोग इसको बनाएंगे और यहाँ से इसको डायमेंशन भी हम लोग कर देंगे। डायमेंशन आएगा मेरे पास 4.5 और एंटर। 4.5 एंटर करने के बाद यहाँ से मैं ले लेता हूँ ट्रिम। ये ट्रिम हो जाएगा। ये भी ट्रिम करना है आपको, ये भी ट्रिम करना है, ये भी ट्रिम करना है। तो ये आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ से मिरर कमांड लेनी होगी। तो पहले मैं इसको विंडो बना के सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जाएंगे यहाँ से मिरर कमांड में, और मिरर कमांड में जाने के बाद आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा सेंटर लाइन। सो आपका मिरर आपका दूसरी साइड में आ जाएगा। इसके बाद आपको लेनी है टेंजेंट लाइन। ठीक है ना, तो टेंजेंट लाइन ये है बाई टेंजेंट लाइन। मैंने कहा एक यहाँ से और एक यहाँ से मुझे टेंजेंट लाइन चाहिए। फिर एक टेंजेंट लाइन मुझे यहाँ पर भी चाहिए। ठीक है, एक टेंजेंट लाइन यहाँ से मुझे यहाँ पर भी चाहिए होगी। ओके, इस टेंजेंट के पास है ना दोनों को ट्रिम कर लेना। ठीक है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जब ये दोनों ट्रिम हो जाएंगे तो इसके अंदर अब ये है ना होल भी चाहिए मुझे। तो मैं ये दोनों सर्किल को मैं प्रोजेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे पहले, यहाँ से, और ये वाला। ठीक है, और इसको भी मैं प्रोजेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पर प्रोजेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर भी आपका कुछ फिलेट है 5 का, तो यहाँ पर भी हम लोग फिलेट कर लेते हैं। और यहाँ पर भी फिलेट है, ये पहले ही कर लेना था। इसको भी फिलेट कर देते हैं।
यहाँ से एग्जिट। अब इसकी एक्सट्रूजन वैल्यू एक बार देख लेते हैं। 6 mm एक्सट्रूजन वैल्यू है, तो ये एक्सट्रूड होगा पीछे की साइड में। तो यहाँ से इसको रिवर्स कर देते हैं और यहाँ पर वैल्यू हम लोग कर देते हैं 6 mm और एंटर कर देते हैं। सो आपका ये मैनीफोल्ड ऐसा आ जाएगा। चलिए, हमारा लगभग सारा काम हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर चैम्फर की बारी आती है। 3-4 जगह पे चैम्फर है। ठीक है, वो चैम्फर हम पहले यहाँ पे C1, ये चैम्फर 1, चैम्फर 2, तो यहाँ पर आप लोग को चैम्फर लेना है। चैम्फर ले लीजिए और यहाँ पे 1 mm लेंथ है। ये वाला पार्ट तो चैम्फर में है। उसके बाद ये वाला पार्ट भी चैम्फर में है। चलिए, ये चैम्फर हो गया। अब एक यहाँ पर भी चैम्फर है, यहाँ पे 2 का है और यहाँ पे 3 का चैम्फर है। तो यहाँ से फिर से चैम्फर लेते हैं और यहाँ पर चैम्फर डालेंगे 2 mm और यहाँ पर चैम्फर हो जाएगा ओके। उसके बाद यहाँ पर भी एक चैम्फर आ जाएगा। चैम्फर ये है हमारे पास में 3 mm लेंथ का और ओके। तो गाइस, हमारा ये काफ़ी हद तक तैयार हो गया है। इसमें बिल्कुल वैसा ही हमने बना दिया जैसा हमें यहाँ पर दिख रहा था। आप देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही है। यहाँ से आप लोग जाएंगे और इस शेडिंग में ऑफ़ कर देता हूँ तो थोड़ा सा आपको स्मूथ लगेगा। ठीक है, तो ये था ट्यूटोरियल एक एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड के ऊपर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए काफ़ी यूज़फुल है ट्यूटोरियल। ओके, सो इसके ऊपर अब कुछ हम लोग मटेरियल असाइन कर लेते हैं। ओके, मटेरियल असाइन कर लेंगे। सो यहाँ से शेडिंग विद मटेरियल में चलते हैं और यहाँ से हमारे पास मटेरियल आएगा। इसको मैं लार्ज कर देता हूँ और यहाँ से हम लोग लेते हैं अप्लाई मटेरियल। तो एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड कास्ट आयरन का होता है, एल्यूमिनियम का भी होता है। तो कास्ट आयरन अब यहाँ देख लेते हैं मेटल के अंदर। टाइटेनियम का भी होता है एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड। तो एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड, इसके ऊपर मैंने अप्लाई किया टाइटेनियम। आजकल टाइटेनियम का यूज़ होता है क्योंकि काफ़ी लाइट होता है। खैर, ये तो पुराने इंजन के लिए होगा। सो ये टाइटेनियम भी है और भी काफ़ी सारे मटेरियल हैं, ये सब आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे और मुझे कुछ इसके लायक लग नहीं रहा है तो मैं इसको ही रहने देता हूँ। ठीक है, शेप में भी नहीं, स्टोन में भी नहीं। सो हम इसको टाइटेनियम का ही रहने देते हैं। टाइटेनियम का एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड है ये। सो गाइज़, अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।